یہ جادو وغیرہ یا ٹونا کوئی ایسا معاملہ؟ اسے گھر سے ملی چیزیں ملی ہیں، وہ جادو وغیرہ کرتی تھی، اس میں کافی لوگوں کے اوپر جو بت بنا کر اس سے، جس میں میرا بھی ایک بتا رہے تھے کہ وہ مارنا چاہتی تھی جادو کے ذریعے۔ ہم تو راضی نہیں تھے ادھر شادی کرنے کے لیے بیٹی کے، میں نہیں راضی تھا، انہوں نے میرے سے زبردستی سمجھ لے رشتہ لیا۔ ایک لفظ ہی بول دیں آ کے یار کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میری ماں نے میری بہنوں نے مل کے میرا گھر اجاڑ دی ہے۔ ہمارے سامنے ایک دو دفعہ بات کی ہے، اس کے علاوہ میڈیا کے سامنے نہیں آ رہا۔ زارا کا بیٹا جو شافع، آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہے اس بچے کی؟ پہلے اٹیچمنٹ تھی، اب جو واقعہ اب نہیں ہے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ زارا کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوشش کریں گے کہ مختصر سی بات کریں، زیادہ سوال اور ایسی چیزیں نہ پوچھیں کیونکہ پہلے ہی کافی تکلیف دہ جو لمحہ ہے وہ چل رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ شبیر صاحب، یہ زارا کی پسند کی شادی تھی ادھر یا رضامندی کوئی؟ نہیں، ارینج میرج تھی، پسند کی نہیں شادی تھی۔ کتنا عرصہ یہ شادی ٹھیک رہی ہے؟ اس کے بعد کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کو پتہ چلی ہو کہ ہماری بیٹی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے؟ شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، کچھ سال ڈیڑھ بعد تھوڑا گھر میں عام جھگڑا ہوتا ہے ماڑا چنگا، وہ جناب اس تو بعد وہ خاون جہاں وہ اچھا سلوک سی انہوں باہر لے گیا سی، اور زیادہ اینا مسئلہ نہیں سی جہاں اس حد تک چلا جائے۔ عام گھروں میں چھوٹے موٹے مسئلے چلتے رہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں سی کوئی۔ اچھا، زارا کے ہسبینڈ پہلے یہاں پہ کام وغیرہ کرتے تھے؟ نہیں، سعودیہ میں کام کر، شروع سے ادھر ہی تھے؟ شروع سعودیہ میں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ سارے معاملات کیسے بڑھے ہیں؟ ابھی تک جو مین وجہ ہے نا وہ سامنے نہیں آئی کہ کس چیز کی وجہ سے جو ہے نا یہ قتل کیا گیا؟ وجہ صرف یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی کا جو اپنے سلوک بہت اچھا، صرف یہی وجہ، اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کیوں ساتھ لے جاتا ہے باہر، اس کے اکاؤنٹ میں کیوں پیسے بھیجتا ہے۔ جو اس کی بہنیں ہیں اسی گاؤں میں شادی شدہ ہیں، ان کو مین مسئلہ ان کو تھا، انہوں نے والدہ کو ورگلایا، مین مسئلہ یہی ہے، اور کوئی مسئلہ کوئی لڑائی جھگڑا ہم میں نہیں دیکھا، نہ میری بیٹی نے مجھے بتایا ایسا کوئی چھوٹا موٹا جو ناراضگی ہونی یہ بتاتے ہیں، پر اس علاوہ کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں تو ان کی زارا کی جو ساس ہے انہوں نے کبھی آپ سے رابطہ نہیں کیا کہ یہ گھر میں کوئی ایسے مسئلے پیدا کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ یہاں تک نوبت آ جائے؟ نہیں، ایسا کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اور سر یہ ایک اور چیز یہاں پہ میڈیا پہ کافی گردش کر رہی ہے، آپ نے یہ پہلے بھی شاید انٹرویو میں یہ بتایا ہے، لیکن ہم جو ہے نا کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ کہ زہرا کہتے ہیں 7 ماہ یا 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ نہیں، بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ یہ میڈیا کوئی نہ کوئی اپنے پاس سے کچھ بتاتا ہے، ہمارا ایسا کوئی بات نہیں۔ کیونکہ زیادہ تر جتنی بھی رپورٹ ہو رہی ہے سب پہ یہی آ رہا ہے کہ 7 ماہ کی حاملہ۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اور سر یہ شک یقین میں کیسے بدلا ہے کہ یہی لوگ ملوث تھے اس میں؟ وہ میری بیٹی کے ساتھ ڈیلی پر رابطہ ہوتا اور اس کا خامنے کا بھی ہوتا۔ وہ جو اس کا بیٹا شافع ہے نا، وہ اپنے بیٹے کے لیے اتنی سمجھ لیں کہ میرے پاس بھی نہیں سے آنے دیتی، وہ کبھی اس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتی، اور جو گھر ہے اس کا وہاں سے کبھی وہ اپنے خامد کو 1 منٹ کے لیے گھر سے جائے نا وہ بتا کر جاتی ہے، وہ اکیلے کبھی بغیر بتائے نہیں جاتی۔ یہی شک ہوا تھا۔ تو اس پہ پھر آپ نے کیسے یہ سارا معاملہ دیکھا؟ کیونکہ صبح جو اس کا خامد اس نے رابطہ کیا، صبح نہیں ہوا، نیٹ بند، موبائل بند جا رہا تھا، 12 بجے کی 11-12 بجے کے قریب میں نے رابطہ کیا، نہیں ہوا۔ شام کو جب پھر دوبارہ اس کے خامد نے رابطہ کیا، نہیں ہوا، تو اس نے اپنی بہن سے فون کیا کہ زارا کو رابطہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہے جی وہ تو مجھے فون کر کے چلی گئی ہے، کہہ رہے کہ صبح 7 بجے سے کہ میں کسی کام کے طرف جا رہی ہوں، شام کو واپس آ جاؤں گی، شافع گھر میں ہے۔ اس کو شک ہوا کہ وہ کبھی گئی، مجھے بتانے کے بغیر نہیں گئی، اور گھر میں شافع اکیلا ہے۔ تو اسی وقت اس نے مجھے فون کیا کہ ماما جی زارا گھر سے یہ بتا رہے ہیں کہ شافع گھر میں ہے اور زارا نہیں ہے، آپ فوری پتہ کریں۔ میں ادھر ہی تھا، میں اسی وقت گاڑی لی، فوری سمجھ لیں کہ دل میں ایسا تیزی سے کوئی وہ کیوں بال دوں، میں فوری 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جتنی جلدی ہو سکا میں وہاں پہنچا۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو جب میں گھر کو دیکھا، ٹوٹل گھر کو واش کیا گیا تھا، فریش واش کیا گیا تھا۔ تو اس وقت اس کی ساس، دونوں نندے، ان کے بیٹے اسی وقت بڑے خوش گپیں لگا رہے تھے۔ مجھے اسی وقت شک ہو، یہاں گھر میں کوئی شک نہیں ہوا، ضرور ہے جو اس طرح نند ہیں یا نندے ہیں؟ نندے ہیں،
2 हैं, 2 है जो उस टाइम मौजूद थी। मौजूद थी। ठीक है। उसी पर मुझे शक हुआ, मैं उसी वक्त बेटी के कमरे सीधा चला गया, चेक किया, बेड वगैरह को चेक किया, सब कुछ चेक किया। जब मैं चेक करने लगा तो फिर वो मेरे पास आ गई, क्या चेक कर रहे हो? मैं चेक कर रहा, मेरी बेटी के साथ क्या किया आपने? आप कैसे शक कर रहे हैं? मैं चेक नहीं कर रहा, यकीन है मुझे आपने कुछ ना कुछ किया ज़रूर है। वो मेरे साथ बहस या झगड़ा वगैरह शुरू कर दिया। तो मैंने उसी वक्त मैंने सोचा शायद मेरे साथ भी कोई ऐसा ना करें। तो मैं भाई को फ़ोन किया कि मैं आप इधर आ जाएँ, ऐसा मसला। भाई कह रहे कि ऐसा नहीं यार, मसला ऐसा ना सोचें बेटी के बारे में। मैंने कहा आप आ जाएं इधर। ये समझ लिया कि 2-2.5 घंटे बाद ये दोनों भाई और जो उसकी सास है, उसका भाई और एक भतीजा, ये 4 उधर मेरे पास पहुंच गए। जब वो पहुंचे उसके बाद हमने टोटल कमरे चेक किए। जब कोई सुराग ना मिला तो फिर हमने 115 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया। लेकिन सर आप वहीं पे ढूंढ रहे हैं और बेटी आपकी टुकड़ों में, बोरियों में, उसी घर की बैक साइड पे। नहीं, उस वक्त 2 जो मेन जो तोड़े थे ना वो फेंक आए थे। बकाया जो कुछ एक तोड़ा और 4 जो है वो इधर घर में ना, बकाया सब वो क्लोज कर। सर कदीर ने आपसे भी रब्ता किया कि मेरा रब्ता नहीं हो रहा, आप इधर से निकल गए हैं, तो उसको डाउट भी था कि अगर ये मामला है, उसने अपने घर भी इतला कर दिए कि मामू आ रहे हैं, मामू से कोई बात ना करना। वो देखे ना, कदीर ने अगर बात की है आपसे तो बेटा ही है ना, आपका बेटा है, तो आपसे की है, तो फिर आप जाते पहले जाके वहाँ पे देखते क्या सूरत हाल थी। जैसे उन्होंने उनको कॉल कर दी है उसे उधर घर अपनी वालदा को, तो वो लोग तो फिर इस अलर्ट हो गए, उन्होंने फ़ौरन से ये चीज़ें। ये तो मेरा ज़हन काम करता है, क्योंकि उन्होंने कहा उसी वक्त हमने क्लोज़ किया है। देखो बताया तो ज़रूर होगा जो ये क्लोज़ किया है। अच्छा, मतलब कि 2 तोड़े पहले फेंक दिए फेंक दिए थे और एक अभी उधर पीछे ही पड़ा हुआ था। ये पीछे नहीं पड़ा था, वो क्या सेफ में था, शापरों में था, तोड़ा नहीं, शापरों में रखा हुआ था। अल्लाह ताला जो साथ था सीढ़ियों एक केल वगैरह जो कोई लगा उसे टांग दिया, उसके ऊपर कपड़ा रख दिया था उसने। वो पता ही ना चले कि क्या चीज़ है। मैं तो पूरी बॉडी चेक कर रहा था, मुझे ये तो नहीं मेरी बेटी जो है शापरों में, मैं तो बॉडी पीस चेक करके आपको तो माइंड में नहीं, आपको था कि अगर कुछ इन्होंने किया है, हरकत ऐसी की है इन्होंने, तो कहीं ना कहीं डेड बॉडी है ना छुपा दी दिया, या वो पूरी डेड बॉडी ढूंढ या रहे हैं। जिंदा, या उसने कोई नशे वाली चीज़ को दे दिया या बांध कर रखा है, कुछ भी किया है। मैं शायद मिल जाए इधर, मैं तो वही ढूंढ रहा था। मुझे उम्मीद तो नहीं थी ये मेरे साथ ऐसा हो चुका होगा, ये इतना जुल्म हो जाती होगी। और सर इन्हीं हाथों में ज़ारा पली बड़ी जवान हुई है, उंगली पकड़ के चली है, और इन्हीं हाथों ने उनके पीस हैं जो टुकड़े कर दिए गए हैं, स्पुर्दे खा किया। तो ये बहुत बड़ा जो है ना इंसानियत का भी कत्ल है ये। जी बिल्कुल सही है। एक ही मेरी बेटी थी और वाइफ फौत हो चुकी है। तो अभी जो बयानात आ रहे हैं सामने उनकी जो हैं ज़ारा की खाला के, कि वो बता रहे हैं कि ये जादू वगैरह या टूना कोई ऐसा मामला ज़ारा की सास। हाँ, ये सुनने में तो ज़रूर आया कि उसे घर से मिली चीज़ें मिली हैं, वो जादू वगैरह करती थी। उसमें काफ़ी लोगों के ऊपर जो बुत बनाकर उससे, जिसमें मेरा भी एक बुत बना था, या और भी जिसको आपका भी? जी, एक उसका भाई का, या वो कोई यही बता रहे थे कि वो मारना चाहती थी जादू के ज़रिए। सर क्यों आपकी फैमिली के पीछे पड़े हुए थे? कोई रीज़न तो होगा ना? रीज़न यही है, ऐसे बेटी का जो वो कह रही है मेरा बेटा उसने छीन लिया। रजामंदी से लेके गए हैं ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं ना यहाँ से नहीं, लेके? जब हम तो राज़ी नहीं थे उधर शादी करने के लिए बेटी के, मैं नहीं राज़ी था। मेरे साथ ज़बरदस्त समझ आपको ये चीज़ें पहले मालूम थी? नहीं, पहले जो ऐसे नहीं थी। जो जब रिश्ता लेने आई, वो सास उसकी नंद है, और उसका खावंद है, और जो उसका मामू है, इन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती समझ ले रिश्ता लिया। कैसी ज़बरदस्ती सर? बेटी है यही ना? कि ज़बरदस्ती ऐसी होती है रिश्तेदारों में कि ठीक है भाई हमने रिश्ता लेना ही लेना है। वो ज़बरदस्ती नहीं होती, यही मजबूर किया मुझे। और कोई बात मतलब कि आपने भी अपनी वाइफ के कहने पे या अगर रजामंदी आपकी कि चलें कर रहे हैं इतना फोर्स, हाँ जी, तो हमारी बेटी जो है वहाँ पे खुश रहेगी खुश रहेगी। कि चलें लड़का बाहर है तो वो बेहतरी हो जाएगी। लेकिन इस दिन के लिए तो नहीं की थी शादी कि हम भेजेंगे सही सलामत और जो वापस हमें है वो टुकड़ों में मिलेगी। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अपनों में किया था, उसी सगी खाला थी। हमें ऐसा तो नहीं सोचा कि सगी खाला ही हमारे साथ ऐसा करेगी। तो कदीर से आपका राब्ता हुआ है
उसी टाइम हुआ है या उससे अगले दिन हुआ है कि बेटा यहाँ पे तो मामला जो है ना ख़राब हो चुका है? उसी वक्त रब्ता हुआ था। उसी वक्त जब मैं उस घर में पहुंचा, जब मेरे भाई पहुंच गए, तो उसी वक्त उसकी जो दोनों बहनें हैं, जो उसके भांजे हैं, उन्होंने वीडियो कॉलें शुरू कर दी उसको आप और भी कि ये देखें हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये हमें टुडे लगा रहे हैं, हमारे बाल खींच रहे हैं, आपको ये प्रेशराइज कर रहे थे? प्रेशराइज कर उसको अपने लिए मुतमिन कर रहे थे ना, ये इनके खिलाफ हो जाए। उस वक्त हो भी गया, थोड़ा बड़ा हो भी गया था। कदीर मुझसे मामू ये ऐसा ना करें, आप क्यों कर रहे हैं, ये करें वो करें। मैंने कहा बेटा ये मेरी बेटी का मामला है, आपकी बीवी बाद में है, पहले मेरी बेटी है। तो मैं कहा अगर कोई चांस है तो वही ख़त्म हो, मैं आ रहा हूँ सुबह तक पहुँच जाऊँ, मैं सुबह तक क्या होएगा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तो जैसे ही आए हैं तो फिर उनके सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं, फ़ौरन आए हैं? ये फ़ौरन सुबह 11 बजे पहुँच गए थे। उधर जो बॉडी वगैरह का कलेक्ट उसे नहीं किया। ठीक है। तो अभी तक उनके तरफ से कोई बयान या कोई बात, देखे ना कि मोहब्बत है, मोहब्बत का रिश्ता है, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, प्यार हद से ज़्यादा करते हैं, तो कुछ एक लफ्ज़ ही बोल दें आके यार कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने मिल के मेरा घर उजाड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है मुझे। कोई ऐसी उनकी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई? फीलिंग जैसे हस्बैंड और वाइफ का अगर प्यार है तो क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को? हमारे सामने एक दो दफ़ा बात की है, उसके अलावा मीडिया के सामने नहीं आ रहा। शायद कोई मीडिया के सामने आने की वजह कोई आपसे कोई की ऑफ कैमरा बात? नहीं, कोई बात नहीं ऐसी मीडिया सामने। नहीं, मैंने उसे फोर्स भी नहीं किया। नहीं, फोर्स की बात नहीं, वैसे बात कोई की हो आपसे किसी किस्म की? नहीं, एक दिन सुबह का टाइम था, नाश्ता भी नहीं किया, तो उसी वक्त कहा चाबी दो मेरे बेटे को। तो उसने क्यों, क्या करना है? मैंने यार सियालकोट जाना है। तो मैं क्यों जाना है, आपकी वजह क्या है? मैंने अपनी वालदा और बहन से ये पूछना है कि हमने कौन सा जुर्म किया, कौन सी मैं सिर्फ पूछने जाना है यही कि हमारे साथ इतना जुल्म क्यों किया, मैं सिर्फ पूछ कर। तब तक वो अरेस्ट नहीं हुए थे? लोग अरेस्ट हो चुके थे। हो चुके थे। तो फिर इसने कैसे पूछने जाना था? बस उधर थाने में गया था। जो लाहौर वाला जो बता रहे हैं उसका क्या, इसमें जो है इसने क्या किया इनके साथ मिलके, उसका क्या रिलेशन था इनके साथ? हमें तो ये दूर का, उनके चचा दादा कोई भाई हैं, उनकी एगो साली है, उसके आगे से दूर का रिश्तेदार है, इनका कोई जाती रिश्तेदार नहीं है। वो शादी पे वो आया था चचाजाद का भाई? नहीं, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो आज कहाँ से ये चचाजाद भाई मतलब कि पैदा हो गया? ये देखें, जो यास्मीन है उसका खान बार है, उसके घर में आकर एक हफ्ता या 5-10 दिन रहता है। किस लिए रहता है? ये तो समझने कोई वाली गैर को कौन रखता है घर में? ये देख लें आप, कुछ मामला हैं। ये तो देख लें तो कुछ समझदार हैं। अच्छा शबीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ज़ारा का बेटा जो शाफे, जी वो अभी वालिद के साथ ही है? जी, वालिद के साथ है अभी। तो क्या समझ रहे हैं कि अभी वो कैरी कर सकते हैं इस चीज़ को? इस कंडीशन में है कदीर? इस कंडीशन में नहीं है। बहरहाल ये है कि जो बेटा है उसका, वो दोनों जो मेरी बेटी है, जो उसका खामद है, वो दोनों के पास रहता था। अब वो किसी के पास बिल्कुल, शायद उन्हें देख लिया हो, उसके वालिद के साथ जो हुआ है। आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है उस बच्चे की? पहले अटैचमेंट थी, अब जो वाक़या अब नहीं है, पता नहीं क्या वजह हुई है। तो कदीर ने वापस तो जाना है ना काम के सिलसिले में, कि पाकिस्तान अभी? नहीं, इस बारे में नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। कोई नहीं। देखते हैं क्या करता है। अगर बाहर जाता है तो फिर बेटा मैं अपने पास रखूँगा। करेंगे साथ हाँ में। जी। कुछ लोग बता रहे हैं, ज़राए के मुताबिक ये भी चीज़ सामने आ रही है कि कोई जेवरात का मामला था, जेवरात पे भी कोई इनकी लड़ाई हुई है जिस पे? नहीं, लड़ाई कोई भी नहीं हुई। हाँ, जेवरात तो उसके पास थे, पैसा और जो अब इधर से मेरे पास चली गई है ना। टोटल कितना जेवर था? जो उसका खान 15 तोले जेवर था। ठीक है। और रियाल थे 11.5 या 15,500 रियाल उसके पास था। और जो पाकिस्तानी थे, शायद वो ज़्यादा नहीं थे, समझ ले के लाख या 80,000 इतने थे, वो ज़्यादा नहीं। वो आपके पास इधर मौजूद थे या उधर उनके घर थे? उनके घर थे। तो उस पे लड़ाई, ये मेन से जेवर और ये जो पैसों का था? नहीं, झगड़ा सा नहीं, वो पहले प्लान बना चुके थे, पैसों का या जेवर का नहीं था। वो प्लान पहले बना चुके थे। अगर
वक्ती तौर पर झगड़ा होता है तो लाहौर से जो 2 दिन पहले आ जाता है, उसको 10,000 भेजते हैं इधर सीध वो में। लाहौर से जो आया वो निहत्ता आया या कोई चीज़ लाया? नहाता आया, इधर आया 3 दिन, इधर 2 दिन। और उसको ये भी सुनने में आ रहा है लालच दी थी कि उसको कोई इटली शिटली का यूरोप भेजे गए। ये किसने, वो यास्मीन ने कहा? यास्मीन ने कहा, उसका खान बाहर उधर यूरोप होता है ना, उसने जो बुगदा जो छुरा लेकर आई वो उसके साथ, और जो लाहौर से है ना उसके साथ गई। ठीक है, तो उसको बुलाया कि आपको बाहर भेजना है बाहर और ये मामला करनी है। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, ये थे हक़ाइक़ जो हमने आपके सामने रखे हैं। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।